Good morning, students. Today I am going to start the second poem of the Laburnum Top. This is your second poem given in the book from Hornbill. So, written by Ted Hughes. He is the author of this poem. So first of all, let us see the definition of a laburnum. Laburnum means क्या होता है? Laburnum means a short tree with hanging branches. A short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. It means एक short tree होता है and उसकी जो branches होते हैं hanging करते हैं and it is of yellow color. वो येलो कलर का होता है ना एंड इट्स सीड्स आर वेरी पॉइजनस और इसके जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं. एंड इन दिस पोम वी कैन सी द कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स. व्हाट आर दीज टू थिंग्स? टू थिंग्स मीन्स द लेबर्नम ट्री एंड अ बर्ड नेम्ड गोल्डफिंच. दीज टू आर द इंटरलिंक ऑफ दिस पोम. इस पोम में ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं. इन दीज टू आर हैव बीन टॉकिंग अबाउट इन दिस पोम्स. द फर्स्ट वन इज द लेबर्नम ट्री एंड द सेकेंड वन इज गोल्डफिंच. गोल्डफिंच इज आल्सो अ काइंड ऑफ बर्ड विद येलोइश कलर. उसके भी कलर कैसे हैं? येलो हैं. और लेबर्नम ट्री के भी कलर कैसे हैं? येलो हैं. एंड दीज आर द सिमिलैरिटीज वी कैन सी बिटवीन दीज टू थिंग्स. ये सिमिलैरिटीज है जो हम इन दोनों के बीच में देख सकते हैं. So let's get started. The laburnum top is still quite silent in the afternoon. Yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The laburnum top is silent. It means it makes no sounds. It produces no sounds and it is quite still, means it is like a dead body. There is no sounds at all on the top of the laburnum tree. And the time which has been given here is afternoon. And the month which has been given here is September. Why the month September has been given here? Just because of it is an autumn season. September month is the mark of autumn season. Autumn season को ये mark करता है. That's why September month is has been given here. Sunlight means rays of the sun. So what happens? Laburnum top बहुत ही silent है, still है. There is no sound at all. और दोपहर के वक्त जब sun की जो rays हैं वो उस पर पड़ती हैं तो उसकी जो येलो जो ट्री है, येलो जो फ्लावर्स उसके जो हैं, इट स्टार्ट्स शाइनिंग. वो शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं और ज़्यादा चमकना स्टार्ट कर देते हैं. एंड फिर क्या होता है? अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और इसके कुछ लीव्स येलो हो रहे हैं. इट मीन्स इट इज टर्निंग इनटू येलो कलर. उसके कुछ लीव्स येलो कलर में टर्न हो रहे हैं. एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन एंड ऑल द सीड्स ऑफ द लेबर्नम ट्री हैव गॉन. इट मीन्स यू कांट सी सीड्स ऑन द टॉप ऑफ द लेबर्नम ट्री. सभी के सभी सीड्स उसके जो है वो फॉल हो चुके हैं, गिर गए हैं. दिस इज द definition, this is the explanation of this stanza. First, let us see the next stanza. Till the goldfinch comes. अभी तक till now you have seen there is no movement at all on the branches on the laburnum tree. laburnum tree पर कोई भी movement नहीं है, एकदम silent है, still है. Then what happens when the goldfinch comes? It starts shaking and making lots of noises. What kinds of noises do we see? Let us see. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. और as soon as the goldfinch comes or enters the laburnum top, जैसे ही goldfinch उस ट्री के ऊपर बैठती है, उसकी एक ब्रांच के एंड पर बैठती है, it starts twitching. Twitching means sudden jerk movement. Twitching means sudden jerk movement. अचानक पेड़ में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. स्टार्टलमेंट मीन्स
फीलिंग और शोइंग सडन शॉक, अचानक पेड़ में एक फीलिंग्स आ जाती है और वो और उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो मूवमेंट किसकी वजह से स्टार्ट होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द गोल्ड फिंच विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोट्स। वो अलग अलग धुन निकालती है, नोट्स निकालती है, और उस जैसे लगता है कि उस पेड़ के अंदर जान आ गई हो, क्योंकि उसके जो लीव्स हैं वो मूव करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, ठीक है। उसके ब्रांचेस वगैरह हिलने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो क्या करती है? फ्लटर आउट करती है, मूव आउट करती है, घूमती है। देन स्लीक as a lizard and alert and abrupt. Sleek means glossy or shiny. How the bird look like? The bird look like a lizard. एक छिपकली की तरह बर्ड दिखाई देती है, and she is very glossy and shiny. वो बहुत ही glossy और shiny appear होती है. And alert means to be very attentive. The bird is very attentive on the tree. And rapid means rapid या रैपिड और फास्ट, कुछ भी कह सकते हो आप। फिर क्या होता है? शी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। जैसे ही वो थिकनेस मीन्स लॉट्स ऑफ फ्लावर्स टू बी ग्रोन देयर, जहाँ पर वो एंटर करती है वहाँ पर बहुत से फ्लावर्स और ब्रांचेस वगैरह की जो थिकनेस है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर है। तो जब वो पेड़ के थिकनेस की तरफ एंटर करती है, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाती है और बहुत तेज़ी से मूव करती है थिकनेस की तरफ, और जब एंड प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोट्स, साउंड्स। और जब वो अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करती है, इट मीन्स ऐसा लगता है कि एनी मशीन्स स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग सम साउंड्स। जैसे हम किसी मशीन को देखते हैं, जब उसे हम स्टार्टअप करते हैं, चलाते हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इन द सेम वे वो जैसे जैसे मूव कर रही है, पेड़ की एंड की तरफ जा रही है, वहाँ पर वो मूवमेंट उसका स्टार्ट हो गया है। वो भी अलग अलग नॉइजेस वगैरह प्रोड्यूस कर रही है, साउंड्स प्रोड्यूस कर रही है। वो कैसे कैसे साउंड्स है यहाँ पे बताया हुआ है। ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। चिटरिंग मीन्स साउंड ऑफ द चैटरिंग, चैटरिंग करती है, वो आवाजें निकालती है। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर मीन्स मूवमेंट ऑफ विंग्स। विंग्स का जब मूवमेंट होता है तो अपने विंग्स का भी मूवमेंट करती है और चैटरिंग भी करती रहती है। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग मीन्स टू प्रोड्यूस अ चैपिंग साउंड्स, टू प्रोड्यूस अ चैपिंग साउंड्स। इन दिस पोम्स लॉट्स ऑफ साउंड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड। इस पोम में बहुत से साउंड्स डिस्क्राइब किए गए हैं। एंड ऑल दोज सॉन्ग्स बिलोंग टू द गोल्ड फिंच। वो सारे के सारे साउंड्स गोल्ड फिंच से ही बिलोंग करते हैं। बस एक तरीका है, एक मेथड है, डिफरेंट वे है उसको रिप्रेजेंट करने का। गोल्ड फिंच को रिप्रेजेंट करने का एक अलग अलग तरीका है जो पोएट यूज कर रहा है, अलग अलग वर्ड्स का यूज करके। और सारे वर्ड्स जो हैं वो एक ही मैसेज दे रहे हैं, साउंड्स ऑफ द बर्ड, बर्ड की जो साउंड है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। अब जब ये साउंड्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देती है तो पूरा जो पेड़ है वो शेक करने लगता है, मूव करने लगता है, हिलने लगता है। एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट से वो इनथ्रिल हो जाता है, भर जाता है। इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली। दिस ट्री इज सेड टू बी द इंजन ऑफ अवर फैमिली बिकॉज इट्स नेस्ट आर टू बी बिल्ड देयर। उसके जो नेस्ट है वहां पर बिल्ड किए गए हैं, दैट इज वाई। और उस नेस्ट में क्या है? उसके चिक्स हैं, उसके चूजे हैं, जिसके लिए वो आती है, उन्हें फीड करती है, खाना खिलाती है, देन फ्लाइज अवे, फिर उसके बाद वो उड़ जाती है। इसीलिए उस पेड़ को इंजन कहा गया है। शी स्टोक्स इट्स फुल। स्टोक्स मीन्स टू फीड, फीड्स चिक्स। वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड मूव आउट। फ्लड्स आउट मीन्स मूव आउट। उसके बाद वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की तरफ मूव आउट कर जाती है। देन शी मूव्स फ्रॉम वन ब्रांच टू द अदर।
showing her bird face identity marks. Bird means a strip, a black strip. एक ब्लैक स्ट्रिप को ही बर्ड कहा गया है. इसकी मीनिंग यही होती है, ब्लैक स्ट्रिप विच इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गोल्ड फिंच. जो गोल्ड फिंच की आइडेंटिफिकेशन है. अगर वो बर्ड नहीं होगा, वो ब्लैक स्ट्रिप्स अगर उसके फेस पर नहीं होगा, then you will not be able to identify whether any goldfinch are sitting here or not. It means the laburnum tree is also the laburnum tree is of yellow color. In the same way, the bird is also of yellow color. So how will you identify? Just by taking the a pic of that black strips which you can see. अगर आप वो ब्लैक स्ट्रिप नहीं आइडेंटिफाई करोगे, उसे नहीं आप नहीं देखोगे, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द बर्ड? आप बर्ड को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द बर्ड्स. सो दिस बर्ड, दिस ब्लैक स्ट्रिप इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क विच यू कैन सी ऑन हर फेस. जो उसके फेस पर आप बहुत ही इजिली देख सकते हो, और उसके विंग्स पे भी होते हैं ब्लैक कलर के. Then with eerie delicate whistle, chirrup, whisperings, she launches away towards the infinite. Launches away means fly away. Infinite means into the sky. Eerie means strange. Delicate means very tender. Whistle, chirrup, whispering means sound like whistle. Sound like whistle. इस तरीके से सीटी की आवाज होती है, उसी तरीके से वो भी धीरे धीरे स्लोली. विस्परिंग मीन्स टू स्पीक इन ए स्लो वॉइस. धीरे धीरे वो साउंड प्रोड्यूस कर रही थी, और बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से वो साउंड प्रोड्यूस कर रही थी. इट मीन्स शी वॉज ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ दोज हु वर स्टैंडिंग देयर, और या फिर ये आवाज जो साउंड प्रोड्यूस कर रही थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ हर चिक्स. अपने बच्चों के लिए वो ये आवाज प्रोड्यूस कर रही थी कि वो इंटरटेन उनका कर रही थी. एक तरह से उनका वो इंटरटेन कर रही थी, उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी कि डोंट वरी एट ऑल, आई एम हियर. उसके बाद वो क्या करती है कि स्ट्रेंज साउंड प्रोड्यूस करती है, बहुत ही वो स्लो साउंड होता है. एंड देन आफ्टर शी फ्लाइज अवे इनटू द स्काई. इसके बाद वो आसमान में उड़ जाती है. एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी. सबसाइड मीन्स इट बिकम्स स्टिल. इट मीन्स द ट्री बिकम्स स्टिल एज इट वॉज इन द बिगनिंग. जैसा कि वो बिगनिंग में जो ट्री था, इट वॉज क्वाइट स्टिल, देर वॉज नो साउंड एट ऑल ऑफ एनी काइंड. इन द सेम वे, when the bird flies away into the sky, the tree becomes quite still. It means it looks like a dead body. There was no sound at all over there. But when the tree enters or sits on the laburnum tree, you saw different kinds of notes, different kinds of sounds we hear from the bird which she produces over there. Lots of movements we see over there, and that's why this is the end of the poem, the laburnum top. So students, watch the video and try to understand the inner meaning given in this poem. Try to write down or jot down a summary of this poem, so you can better understand while it comes into your examination. So don't take it lightly. Unless or until you try to write with yourself, you will not be able to understand. You will not be able to understand anything. So after watching this video, try to understand and just jot down few sentences regarding this poem. इस पोम से रिगार्डिंग कुछ सेंटेंसेस को आप जॉट डाउन करिए, उसे लिखिए, तभी आप इस पोम को समझ पाएंगे. बहुत सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं.
बहुत ही डेलिकेट और सिंपल हैं, बस सीरियस होने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी सीरियस टू द पॉइंट, अदरवाइज बहुत सी चीज़ें आप मिस कर जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।